Hello everyone, how are you all? I hope everyone healthy at your home. All right? Okay. So yesterday's homework is here. Question number third one, you can check with your answer. All right? Question number third ka A, B, C, D we already discussed in video lecture, and E, F, G, H, I for your homework. So you can check with your answers. Alright, you can push the video and check your answer. Alright, okay. And next one जो होमवर्क में दिया था वो था सी डी ई. यू कैन चेक विथ योर आंसर्स. नेक्स्ट वन है थर्ड वन में और फोर्थ वन में सी डी. ऑलराइट, सो यू कैन चेक. और जो मैंने दिया था वो स्टोरी सम 6th, 7th and 8th. Alright, so you can check 6th one, 7th one and here 8th one. Alright, you can pause the video and check your answers. If you are wrong, then correct it. Alright, okay. So today we move to exercise next, that is 9th C. Alright, so before we will start this exercise, you have to write in your fair notebook. So first of all, everyone obviously open fair notebook and remember these formulas. It's very important. It's very important because of ये formulas का use करके ही हम next conversion वाले sum कर पाएंगे. If we know the formula, then after we do this type of sum conversion. If you don't remember this formula, then you can't do anything. Alright, okay. So you can see in your textbook page number 116 exercise 9th C. Alright, okay. So before we will start, you can see here convert into days, convert into hour, convert into minute and convert into second. So if you have to do this sum then remember this one formula. ऑलराइट, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है, इसमें से कई फॉर्मूला आपको वैसे ही याद ही होगी, मतलब पता ही होगी. सो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? वी ऑल ऑफ यू नो 7 डेज. सो दिस इज द फॉर्मूला. इट्स इजी. ओके, सो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? मतलब ये प्रोबेबली हम ये मंथ वाला है वो लेते हैं बिकॉज ऑफ कई मंथ में 31 भी डेज होते हैं. ऑल राइट, बट फॉर्मूला as a formula we have to remember this one, 30 days only. All right, so 1 year is equal to 365 days. कितने ईयर, ये 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365. 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं वो तो हम सबको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो वाला. सो 12 मंथ. ऑल राइट, सो 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. 1 minute is equal to how many second? 60 सेकेंड. 1 day is equal to how many hour? 24 hour. ऑलराइट, सो सबसे पहले सभी बच्चे अपने अपनी फेयर नोटबुक में ये सारी फॉर्मूला लिखेंगे. ऑलराइट, ओके. सो देन आफ्टर वी हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट वन एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन, कन्वर्ट इनटू डेज. ऑलराइट, ओके, convert into days. So first of all we have to write name of exercise, new है, so that's why exercise 9th C. Question number first one, convert into days. First one A1, 9 month. 9 मंथ. सो जैसे हमने सम्स ऐसे यही टाइप वाले सम हमने बहुत सारे चैप्टर में कैलकुलेट किए हैं. ऑलराइट, कैसे मैं आपको याद दिलाती हूँ, शायद आपको याद आ जाए. कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर. ऑलराइट, मतलब किलोग्राम में दिया हुआ है तो हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है. अगर लीटर में दिया है तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है ना. किलोमीटर दिया है और हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यही
टाइप के वो सम थे यहाँ पर। तो तभी मैंने बताया था कि जो भी हमें कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स जिसमें दिया हुआ है और जिसमें कन्वर्ट करना है, ये दोनों के बीच में हमारे पास फॉर्मूला होनी चाहिए, तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मंथ में दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट करना है डेज में। तो 1 मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, फॉर्मूला है हमारे पास, फाइंड आउट 1 मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 30 डेज। सो दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर, है ना। सो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 days, but here we want 9 months, so therefore 9 month is equal to 30 multiply with 9, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डेज में, है ना। सो हियर 0, सो राइट 0 and 9 3s are 27, so final answer is 270 is a final answer. All right, 270. So you can write like this, 9 months is equal to 270 days. Alright, it's very easy sum. If you know the formula, then it's a easy sum. Alright, so next one here given B1. Can you see here B1? 9 months we calculated now. So B1 6 months, so you have to do yourself. So now we are going to solve C1 15 weeks. Alright, C1 15 week. सो जैसे मैंने बताया कि जिसमें दिया हुआ है और जिसमें कन्वर्ट करना है, ये दोनों के बीच में हमारे पास फॉर्मूला होनी चाहिए। सो हम इजीली सम सॉल्व कर सकते हैं। सो 15 वीक्स, सो वीक में दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड इन डेज। सो वीक एंड डेज के बीच में फॉर्मूला है। सो 1 वीक इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, सो हियर गिवन फॉर्मूला 1 वीक इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 7 डे, है ना। सो दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर, 1 week is equal to 7 days, but here we want 15 week, so 15 week is equal to 15 multiply with 7, ये हो गया कन्वर्ट डेज में। so 15 sevens are 105 days. All right, so this is the final answer again. Easy or not? All right. Okay, so next similar sum D1 52 week, so 52 multiply with 7 आएगा, तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। इट्स वेरी इजी, सो डू योर सेल्फ D1 ऑल्सो। सो क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट इनटू R। सो क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट इनटू R। A1 30 days, दैट मीन्स डे में दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट करना है आर में। सो ये दोनों के बीच में फॉर्मूला है, यहाँ पर चेक करेंगे हम डे एंड या आर। सो डे आर, 1 day is equal to how many hour, 24 hour. Alright, so here we have to use 1 day is equal to 24 hours. So here given 30 days is equal to 24 multiply with 30, so 0. If you don't know here answer, then you can do rough work like this, 24 multiply with 3. All right, 4 3s are 12, so 2 here, 1 carry over, 3 2s are 6 plus 1 7. So final answer is 720 hour. Right, it's easy. Okay, so next दिया हुआ है यहाँ पर B1 सम 21 days and 28 hour। सिमिलर वही फॉर्मूला यूज करने हैं हमें, 1 day is equal to 24 hour, but here we want 21 day, 21 days is equal to 24 multiply with 21. सो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हमें नहीं आता है तो हम रफ वर्क यूज़ करेंगे कोई भी रफ पेज में। ऑल राइट, ओके, सो कोई भी
रफ पेज यहाँ पर मैंने ले लिया है। ऑलराइट, सो 24 मल्टीप्लाई विथ 21। ओके, सो 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, सो 4 0 1 5। सो फाइनल आंसर है। ऑलराइट, आपको अगर यहाँ पर नहीं आता है तो आप यहाँ पर कर सकते हो ऐड। सो 28, 12 3 5। सो फाइनल आंसर हमें यहाँ पर मिला है वो है 532 R। Alright, I hope all of you guys clearly understood this type of sums, because this method we already learned. Alright, okay, so C and D you have to do yourself. A, B we calculated, now C, D yourself. Okay, next one, third one, convert into minute. Question number third one, convert into minute. A1 12 hours. सो जैसे कि मैंने बताया, जिसको कन्वर्ट करना है, मतलब आवर्स को कन्वर्ट करना है हमें, जिसमें कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ये दोनों के बीच में फॉर्मूला होनी चाहिए। दैट मीन्स 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। यहाँ पर है ऑलराइट वो फॉर्मूला 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, बट हियर वी वांट 12 आवर। सो 12 आवर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई विथ 60, तो ये हो गया कन्वर्ट मिनट में। तो अब हम करेंगे 12 6 720 मिनट्स। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट वन B1 हम बात करेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 आवर्स एंड 98 मिनट्स। ऑलराइट, सो सिमिलर वही फॉर्मूला, आवर एंड मिनट्स दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है मिनट में। सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। So therefore 4 hour is equal to 60 मल्टीप्लाई विथ 4, ये कन्वर्ट हो गया मिनट में। सो 0 6 4 ज़ा 24 मिनट्स। नाउ वी हैव टू ऐड 4 आवर एंड 98 मिनट दिया हुआ है, तो 4 आवर को हमने कन्वर्ट कर दिया मिनट में, 240 मिनट्स प्लस 98 मिनट्स। ऑल राइट, ओके, ये दोनों का एडिशन करना है हमें, 338 मिनट्स। ऑल राइट, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ऑल ऑफ यू, आप सबको अभी मैंने अभी किया है ए और बी, सो यू हैव टू डू योर सेल्फ सी एंड डी। ऑल राइट, ओके, सो नाउ alright, so now question number fourth one, here given convert into second. So question number fourth one, convert into second. A1 is given here 12 minutes. सो जिसको कन्वर्ट करना है वो है मिनट और जिसमें कन्वर्ट करना है वो है सेकेंड। तो ये दोनों के बीच में फॉर्मूला है 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? 60। ऑलराइट, 1 minute is equal to 60 seconds, but here we want 12. So 12 minute is equal to 12 multiply with 60, तो ये कन्वर्ट हो गया सेकेंड में। सो 12 6 720. Alright, okay, so final answer is 720 seconds. Alright, so question number B1, 9 minutes and 120 seconds.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. So therefore here we want 9 minutes. 9 minute is equal to 9 multiply with 60. All right. So 9 multiply with 60 second. So अब हम इसको एडिशन करेंगे यहाँ पर ये दोनों का, तो हमें आंसर मिलेगा, जो आएगा वो हमारा होगा फाइनल आंसर. इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, वो इतनी सेकंड थी प्लस इतनी सेकंड, तो ये दोनों का हमें करना है एडिशन. फाइनल आंसर हमें मिला है 660 सेकेंड्स. ऑल राइट. ओके, सो नाउ ये नेक्स्ट है C and D. आप सबको होमवर्क में करना है. ऑल राइट.